We have gathered here to learn about TDS. I am sure that we all might have heard about this just in the literal sense, that is tax deduction at source. But barely will we get into the nitty-gritties and in the in-depth detail of understanding what is the purpose of it, who does the deduction, why it is done, and what is the proper way, the very core purpose of introducing this kind of tax. We have with us two luminaries, our guests, who will enlighten us about the TDS and other financial literacy things. I would like to welcome CA Naveen Kukreja. Sir has done BCom, CA and DIS, that is Diploma in Information System and Auditing. He has been into practice since 2002 in the jurisdiction of Thane and Ulhasnagar. His expertise is in direct tax, indirect tax, project finance and property matters. As far as litigation is concerned, he has been practicing into direct taxes and has appeared before First Appellate Authority. As far as indirect taxes and GST is concerned, Sir has appeared before the tribunal, that is Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Mumbai. The clientele as follows: construction industries, ready-made garments, export of garments, doctors, hospitals, government contractors, jewelers, and the list goes on. I would like to mention about our second guest speaker, Mr. Girish Makhija. Sir has done BCom, LLB and has his expertise in tax and financial consultancy. Sir has been in practice since 17 years, that is from October 2007, particularly concentrated in tax and finance. Sir is a registered GST practitioner, having several certificates from National Institute of Securities Markets, to be specific, Equity Derivative Certificate, Commodity Derivative Certificate, Mutual Funds Distributor Certificate, Bombay Stock Exchange Equity Certificate, and National Stock Exchange Equity Certificate. Sir has expertise in clienteles based on TDS calculations, filings, and compliance while guiding on various income tax and GST related queries and documentation. Finishing with my few words, I request our Honorable Principal Madam to please felicitate Naveen sir. Yeah, I think you can clap, no? Why so serious? Mr. Girish Makhija. Thank you, madam. Thank you for kind introduction. Good morning, respected teachers and guardian friends. Today's our topic is TDS under Income Tax Act 1961, which is given under Chapter 17 of Income Tax Act and covers Section 192 to 206. Today's agenda is our TDS program, that is 192 to 194. The compliance form will be given by Mr. Girish Makhija. Now, what is TDS? Generally, in income tax, income is earned in the previous year, and payment is done, tax payment is done in the assessment year, the next corresponding next year. But in TDS, when income is earned in the year, in the same year, tax payment is done by the deductor, that is payer. Some part of the portion is deducted and paid to the government, that is TDS.
Now, who is responsible to deduct TDS? Generally, payer, person who pays the money, the deductor, who pays money to the payee, is responsible for deducting the tax. And deducting is the person who receives the money, on account of whom TDS is deducted and paid to the government as a revenue. When you deduct TDS, TDS is deducted at the time of payment or crediting in the books of accounts. It means when we are booking the expenses books, we can deduct TDS or at the time of credit, that is before making the payment. Whichever is earlier, there are two events. One payment, another is the booking. Whichever is earlier, we have to deduct TDS on that event. But there are some exceptions. In the following 7 cases, TDS are paid on payment basis. That is salary, withdrawal from UPF, dividend, winning from lotteries and crossword puzzles, LIC virtually benefit, compensation for compulsory acquisition of property, and cash withdrawal from bank. These are certain 7 exceptions on which TDS is deducted on payment basis only. In all other cases, at the time of payment or credit, whichever is earlier. The first section is section 192, which covers salary. Who is responsible to deduct TDS is person who pays the salary, an employer. Employer can be any person. It can be individual, HUF, company, firm, LLP. And paying can be any person, resident or non-resident. And rate of TDS is slab rate. Slab rate means employer has to compute the entire tax liability of year and deduct it in 12 equal installment. Okay. And TDS to be deducted at the time of payment. Employer to consider deduction. Deduction is chapter 6A, that is taxable deduction, on the basis of declaration submitted by the employee. If we opt out for new regime, and old regime deductions are allowed, and new regime deductions are not allowed. So he will consider deduction on the basis of declaration submitted by employee to the employer. Employer will consider other income. If he submitted the other income to the employer, then he will consider the other income also. He will add it to the salary and compute it accordingly, and then deduct the TDS on that also. Employer will consider the loss from other sources, except house property. House property loss he has to consider, other losses he is not to consider. When firm pays salary to the partner, then TDS is not to be deducted because that income is liable as a taxable as a business income under the in the hands of the partner. So TDS is not deductible on that income. Can I interrupt? Yes. Because as we are going with the slides, what he's showing, I mean, if we have any questions at that time, can we put it right Yes, across? at that time only. I mean, if anybody has a question, then you can put up the question then and there, especially those who are handling the accounts on the back slide also, if you can go a little back slide. Yes. Because then I think it will be better understood. If you don't have any question, then we can proceed further. But those who are handling the accounts, I mean, if you have any queries, Manoj sir, then and there we can we are not into accounts, so we don't understand 115 BAC, what is that, opting out of that. So if you can be a little more elaborative on that, so we'll understand it much better. There are 2 taxes, old and new. New taxes is given in the second volume for BAC. Okay. This is default tax regime. This is Default tax regime. default. Yes. Okay. If we have to, अगर हम लोग को ओल्ड regime आउट करना है, तो हम लोग को आउट आउट करना पड़ेगा. लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करेगा कि न्यू regime है. तो ये ओल्ड और न्यू रेजिम कौन डिसाइड करता है? वो एम्प्लॉय असेस किया है. जो अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो Yes. मैं ऑप्ट करती हूँ कि मुझे Yes. ओल्ड चाहिए न्यू. Yes. तो जब ये न्यू के लिए कोई डिफॉल्ट है. वो क्या है? डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट है. हाँ. ओके. लेकिन अगर मुझे ओल्ड में करना है तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा. वो फॉर्म भरेंगे तो आपको ओल्ड regime का मिलेगा. ओके. अदरवाइज डिफॉल्ट वे में सब न्यू में जाएंगे. Yes. ओके. ओके. And
हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो आपने कुछ बोला था वो क्या होता है? एक्चुअली जब हम हाउसिंग लोन लेते हैं बैंक से तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट माइनस होता है तो लॉस है हमारा एक्चुअली। जैसे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो लॉस इतना कंसिडर करेगा, अदर लॉसेस जो है वो कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस कंसिडर करेगा अप टू 2 lakhs। अभी प्रोविडेंट फंड जो डिडक्ट होता है इसमें सैलरी में से, अगर हम वो विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेबल है। अगर विदिन 5 years हमने विड्रॉ किया तो, या 50,000 के 50,000 तक रहेगा तो वो टैक्सेबल नहीं है, 50,000 ऊपर रहेगा और विदिन 5 years विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेबल है सेक्शन 192A। उसमें जो ट्रस्टीज है, यानी पर्सनल ट्रस्टीज जो होता है प्रोविडेंट फंड के, वो रिस्पॉन्सिबल है और सामने एम्प्लॉय रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%। Within 5 years means sir? अगर आपने सर्विस छोड़ा विदिन 5 years अच्छा sir. और विड्रॉ किया तो टैक्सेबल है, और अगर 5 years के बाद विड्रॉ करते हैं तो कोई टैक्सेबल नहीं है। लेकिन 5 years के अंदर अगर 50,000 है तो विड्रॉ टैक्सेबल नहीं है, 50,000 ऊपर है तो कोई टैक्सेबल नहीं है। सर्विस छोड़ने के बाद ना? हाँ, 5 years के बाद अगर सर्विस छोड़ते हैं विड्रॉ करते हैं तो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर लॉकआउट वगैरह होता है या कोई गवर्नमेंट डिसेबिलिटी होता है एम्प्लॉय को तो विड्रॉ करता है विदिन 5 years आल्सो, तो भी एग्जाम्पल है, फिर टैक्सेबल नहीं है। सर्विस या आफ्टर सर्विस? आफ्टर सर्विस, अगर आपने सर्विस छोड़ दिया और विदिन 5 years आप विड्रॉ करते हैं, अगर सर्विस छोड़ने के साथ ही तो आपको टैक्सेबिलिटी आएगी। इसको उसी से जुड़ा हुआ फिर मतलब जब हम सर्विस में तो देन वी कैन नॉट क्लेम इन 5 years। सेक्शन 183 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वगैरह कंपनी इशू करती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उस पर जो टीडीएस आएगा वो सेक्शन 183 में आएगा। पर्सनल को जाएगा एनी पर्सन जो पे करेगा, कंपनी हो सकता है, कोई हो सकता है, और हमें पे होगा रेसिडेंट पर्सन, रेट ऑफ टीडीएस रहेगा 10%। और अगर वो अमाउंट 5,000 तक रहेगा और अकाउंट में चेक से हम लोग पे करेंगे तो टीडीएस से डिडक्ट करना है। और एलआईसी, जीआईसी और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को दे जाए या कोई गवर्नमेंट कंपनी को दे जाए तो डिटेल्स नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, ये 3 एक्सेप्शन है। 5,000 रहना चाहिए और अकाउंट पे चेक होगा तो डिटेल्स डिडक्ट नहीं करना है। और अगर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या कोई गवर्नमेंट कंपनी को दे रहे हो तो डिटेल्स नहीं करना है। बाकी किसी को भी दे रहे हैं तो टीडीएस कट डिटेल्स करना कट है। 10%। और अगर बैंक पे प्रोवाइड नहीं करता है सामने तो 20% डबल हो जाएगा। सेक्शन 194 डिवीजन, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी डिवीजन पे करता है किसी को तो टीडीएस काटना है 194 में एट द रेट ऑफ 10%। ये भी अगर पेमेंट करेंगे तो वही अपने को डिडक्ट करना है, अकाउंट बेसिस नहीं, डेली बेसिस, पेमेंट बेसिस पे है। और ये भी अगर 5,000 तक रहेगा तो टीडीएस नहीं आएगा अगर हम लोग ने अकाउंट पे चेक से किया तो, अदरवाइज करना पड़ेगा। और सेम डील अगर एलआईसी को किया, जीआईसी को किया, गवर्नमेंट कंपनी को किया तो डिटेल्स नहीं करना है, तो काम नहीं करना है। ये एक्सेप्शन है। 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी जो बॉन्ड्स और डिबेंचर को छोड़ के जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। 194 को छोड़ के जो 194 है उसमें डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई भी इंडिविजुअल इश्यू रहेगा अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना है एट द रेट ऑफ 10%। अगर किसी इंडिविजुअल इश्यू की टर्नओवर लास्ट ईयर में लेस देन 1 करोड़ है या प्रोफेशनल का असेट्स है वो 50 लाख के अंदर है तो वो लायबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है टीडीएस काटने को। बाकी और अदर पर्सन अगर सपोज मैंने किसी से लोन लिया और मेरे प्रोफेशनल का रिसीट्स जो है 50 लाख बिलो 50 लाख है और मैं इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं लायबल नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरा रिसीट्स कम है या मेरा बिजनेस है और मेरे जो टर्नओवर है लास्ट ईयर की पिछले ईयर की 1 करोड़ और लेस है तो मैं लायबल नहीं हूँ करने के लिए। अदरवाइज मैं डिडक्ट करना है और अमाउंट अप टू 5,000 तक टीडीएस नहीं करना है, उसके बाद अप्रूव करना पड़ेगा। और
सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, अगर जो बैंक पे कर रही है उसमें डीटेल्स नहीं आएगा। लेकिन बैंक जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं कर रही है, अगर 40,000 तक है तो डीटेल्स जरूर नहीं करना है, और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन को 50,000 मिलेगा, वो एग्जाम देगा। और अगर कोई फर्म इंटरेस्ट पे करेगा पार्टनर को और कैपिटल, तो उसमें भी डीटेल्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल है एज ए बिजनेस इनकम, इसके लिए कोई उसमें डीटेल्स नहीं आएगा। 194B, winning from lottery, lottery puzzles, revenue from horses. इसमें स्पेशल रेट 30% सीधा। तो पेयर कोई हो सकता है, कोई भी कंपनी या कोई हो सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल रहेगा, रेट रहेगा सीधा 30% फ्लैट। इसमें कोई डिडक्शन कोई ये नहीं है, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट है। और अगर विनिंग 10,000 तक है तो कोई डिटेल्स नहीं आएगा, 10,000 के ऊपर रहेगा तो ही जाएगा। और सपोज विनिंग इन काइंड है, सपोज किसी को कार मिल जाएगा या कोई प्राइज मिलता है, तो उसका डिटेल्स कैसे कट करेंगे? तो हम लोग सामने वाले इंडिविजुअल को बोलेंगे आप टैक्स पेमेंट करके आओ, एडवांस टैक्स पेमेंट करके आओ, या उससे पैसा लेंगे हम लोग, वो डिटेल्स का 30%। सपोज 10 लाख का कार दिया उसको, 30% 3 लाख होता है, 3 लाख उससे लेंगे हम लोग, वो डिटेल्स पेमेंट करेंगे, या उसको बोलेंगे आप एडवांस टैक्स पेमेंट करके आओ, उसके बाद हम लोग कार रिलीज करेंगे उसको। जैसे केबीसी में हम लोग को 1 करोड़ किसी को जीता तो उसको 70 लाख मिलेंगे, या 30 लाख उससे लेंगे हम लोग, डिटेल्स पे करेंगे तो उसको 1 करोड़ का चेक देंगे। सेम हॉस्टल से वैसे ही एग्जैक्ट सेम प्रोसेस। 194C कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कोई तो 194C में कवर होगा। पेयर कौन रहेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एक्चुअल जिसका लास्ट ईयर का जो रिसीट्स रहेगा 1 करोड़ या 50 लाख के नीचे रहेगा, उसको छोड़ के कोई भी पर्सन रहेगा जिसको डिटेल्स काटता है, सामने पर्सन कौन रहेगा? रेसिडेंट, जिसको हम लोग पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। रेट क्या रहेगा? अगर इंडिविजुअल एक्चुअल रहेगा तो 1% रहेगा, अदर देन इंडिविजुअल एक्चुअल रहेगा तो 2% रहेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 30,000 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट दिया उसी को और 1 लाख क्रॉस हुआ तो भी डिटेल्स काटता है। सपोज हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिए 25,000 के, तो डिटेल्स नहीं आएगा। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर 60,000 का रहेगा तो 1 लाख क्रॉस हो गया तो इंटायर 1 लाख तक भी आएगा, 1% 2% एज द केस में भी। अगर पिछले साल का टर्नओवर कम रहेगा, मैं एज अ कंसेशन 50 लाख से कम रहेगा तो मैं लाइव डिटेल्स काटने के लिए उन डिटेल्स में पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194G कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी, 194H अदर कमीशन ऑफ लॉटरी। इन सब में आएगा 5%, और डोमेस्टिक कंपनी रहेगा तो 10% आएगा इंश्योरेंस कमीशन का, अदर्स का 2% आएगा आफ्टर अक्टूबर 2024 अमेंडमेंट आएगा। इसमें भी अगर स्मॉल इंडिविजुअल रहेगा जिसकी टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ या बिलो रहेगा या 50 लाख से बिलो रहेगा ग्रॉस रिसीव्स, उसको डिटेल्स काटने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको काटने की जरूरत है। और अगर कमीशन अमाउंट 15,000 से कम रहेगा तो डिटेल्स काटने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर रहेगा तो डिटेल्स काटना है। 194I रेंट, इसमें पर्सन को रहेगा, पेयर कोई भी रह सकता है, कहीं रहेगा रेसिडेंट। अगर प्लांट एंड मशीनरी का रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 2%, बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर का रहेगा तो रेट आएगा 10%। इसमें भी जो स्मॉल इंडिविजुअल्स है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर और रिसिप्ट्स 1 करोड़ और 50 लाख जैसे केस में कम रहेगा तो वो लेवल नहीं है, अदरवाइज वो लेवल है। लेकिन अगर रेंट पूरा ईयर का 2,40,000 के नीचे है तो डिटेल्स नहीं काटना है, और 2,40,000 रेंट पर पर्सन है। सपोज कोई प्रीमाइसेस में रेंट पे ले रहा हूँ, उसका रेंट 4 लाख है, लेकिन ओनर सामने 2 है, को-ओनर है, ए और बी, दोनों को 2-2 लाख पेमेंट करता हूँ तो मुझे डिटेल्स नहीं काटना है। सिंगल इंडिविजुअल होगा 240 तो ही मुझे काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। पर पर्सन है 2,40,000। ये जो एडवांस रेंट रहेगा अगर हम लोग पे करते हैं उसका भी डिटेल्स आएगा, और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा जो रेंट के अगेंस्ट रजिस्टर होगा उसको डिटेल्स काटना है। अगर रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा तो डिटेल्स नहीं काटना है। ट्रांसफर ऑफ ओन प्रॉपर्टी, जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसका वैल्यू कंसिडरेशन 50 लाख और मोर रहेगा तो हम लोग डिटेल्स करना रहेगा 1%। सपोज मैंने फ्लैट लिया आपके बिल्डर से
और 60 लाख उसका वैल्यू रहेगा इंक्लूडिंग अदर चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, क्लब मेंबर चार्ज या तो कोई भी कोई चार्ज रहेगा, वो 50 लाख का वो क्रॉस होता है या एसडीबी उसका 50 लाख से होगा, तो हमें 1% रिड्यूस करना है बेटर का या सामने जो सेलर रहेगा अगर रीसेलर फ्लैट है तो एसडीबी क्या है? स्टैम्प डिवैल्यूएशन। उसका 124 आईबी रेंट, ये रेंट है वो जो रेंट था ना स्मॉल इंडिविजुअल के एग्जाम देते हैं, यहाँ पे वो लोग भी कवर हो जाएंगे जो 50,000 अबव पे करते हैं। सपोज मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर कम है लेकिन मेरा रेंट 50,000 पर मंथ है या अबव है, तो मुझे ये सेक्शन में काटना है एट द रेट ऑफ 5% और 2% फ्रॉम अक्टूबर 24। पेयर कौन रहेगा 90%, पे कौन रहेगा 7%, और ये तब काटना है एट द एंड ऑफ द ईयर। सपोज 31 मार्च तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है रेंट का, तो 31 मार्च में काटना है, या अगर बीच में कोई प्रॉपर्टी में वैकेट कर रहा हूँ तो वहां पे काटना है मुझे, या पेमेंट जो भी अर्लियर रहेगा वो। सपोज 1 लाख मेरा पेमेंट है पर मंथ का सैलरी और 12 मंथ्स हो गया 12 lakhs, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को मुझे 2% पे काटना है डीडीएस 24,000 रुपये को। सपोज मैं दिसंबर में खाली कर दिया तो मुझे 9 लाख पे काटना है एट द रेट ऑफ 2%। अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया सोने वाला तो 20% पे करना है। 194 In all cases, if PAN is not provided, then it is 20%. yes 20%. In some cases 5% is there. तो 194 प्रोफेशनल फीस, अगर किसी को प्रोफेशनल फी पे करते हैं अगर वो 30,000 के ऊपर रहेगा तो आपको रिलीज करना रहेगा 10%। फिर कोई भी हो सकता है फॉर्म एलएलपी 20% हो सकता है, इसकी टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 करोड़ या सिर्फ 50 लाख से नीचे रहेगा वो लायबल नहीं है, बाकी सब लोग लायबल है। और अगर 30,000 के ऊपर रहेगा तो ही काटना है तो नहीं काटना है। और अगर फीस पर्सनल पर्पज के लिए है तो रिलीज नहीं होगा। सपोज मैंने किसी एडवोकेट को हायर किया मेरे पर्सनल पर्पज के लिए, मैनेजमेंट पर्पज के लिए तो रिलीज करना नहीं, अगर बेसिस पर्पज रहेगा तो ही मुझे रिलीज करना है, नहीं तो नहीं करना है। 194 एंड तो हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से, वो 194 एंड में बैंक का डिटेल्स एट द रेट ऑफ 2%। और नॉन फाइनल के अलग है वो लगा रहा हूँ, और पर्सन जो रहेगा 1%। सपोज मेरा करंट अकाउंट है किसी बैंक में और मैंने 1 करोड़ के ऊपर कुछ विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ, तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ बैंक डिटेल्स काटेगा 2%। और अगर मैं सपोज नॉन फाइनल हूँ, इसमें नहीं किया लास्ट 3 ईयर्स का, तो वो लिमिट जो 1 करोड़ है वो 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख का कोई टैक्स नहीं आएगा, 20 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ वो आएगा 2% से, और 1 करोड़ के ऊपर जाएगा 5%। अगर मैं नॉन फाइनल लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस लास्ट 3 ईयर्स। और अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी विड्रॉ करती है तो उस पर डीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि वापस में हम लोग का कैश का विड्रॉल चलता है। इसके पहले वाली स्लाइड में इसकी पहले आपने बताया कि इंडिविजुअल अगर प्रोफेशनल हायर कर रहा है उसकी फीस पे करेंगे तो 30,000 देना पड़ेगा, 30,000 डीडीएस नहीं है। नहीं है। और अगर प्रोफेशनल के लिए भी यही है, जैसे समझो ये इंस्टीट्यूट अगर कोई एडवोकेट हायर करता है तो उसको कितनी अमाउंट के बाद 30,000 30 दोनों के लिए 30 ही है। लेकिन 30 के बाद इंटरनल काटना पड़ेगा। सपोज 50 किया आपने तो 30 थ्रेशोल्ड नहीं है, 50 को काटना पड़ेगा पूरा ओके। तो ये प्रोफेशन फी जो है ना पीछे ये नो टीडीएस इन प्रोफेशनल फी पे है ना, तो ये प्रोफेशनल फी व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई मीन पर्सनल पर्पस। हाँ सेकंड पॉइंट में सपोज मैंने कोई एडवोकेट हायर किया बिजनेस पर्पस के लिए नहीं, मैं पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी का मैटर मेरे घर का है, हाँ फॉर वो पर्सनल हाँ, पर्पस तो उसमें डीडीएस नहीं है। तो नो टीडीएस इफ द अमाउंट इज अप टू 30,000। सपोज आपने मुझे कोई काम दिया, प्रोफेशनल वर्क दिया और फीस 25,000 है तो डीडीएस काटना नहीं है। 30 या अमाउंट रहेगा तो ही आपको डीडीएस मिलता है। तो suppose a college hires a teacher and
and the teacher's salary is 30,000 या 25,000. सैलरी तो सैलरी में आपको 192 में है। ये इसमें नहीं, फिर उसमें जाएगा हाँ, ऐसा। वन हाँ, एम्प्लॉय रेगुलेशन है वो अलग जाएगा। हाँ, ये प्रिंसिपल उसमें प्रिंसिपल नहीं। रहेगा तो इसमें जाएगा। ओके ओके हाँ गुड। इससे 1 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं है इंडिविजुअल के लिए। करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट यानी एक बैंक का अगर उसमें 3 ब्रांचेस है बैंक की, सीडीएस में कवर होता है तो तीनों का मिला के 1 करोड़ है। सपोज मेरा पीएनबी में अकाउंट है, उल्लासनगर में है, थाना में है, बॉम्बे में है, बैंक तो एक ही है, सीडीएस ब्रांच ऑपरेट करता है, तो मैं 1 करोड़ तीनों ब्रांच से अलग अलग से ड्रॉ करूँ तो भी मुझे डीटेल्स है, क्योंकि पर ब्रांच है, पर बैंक है, पर ब्रांच है, सेम बैंक या अलग अलग? सेम बैंक। सीडीएस बोर्ड बैंक सोल्यूशन है उनका, तो एक ही बैंक कंसिडर किया जाएगा, ब्रांच कोई भी जाएगा। लेकिन अगर आईसीआईसी है और पीएनबी में है तो मैं ड्रॉ करता हूँ 1 करोड़ करता हूँ, तो डीटेल्स मिलेगा। CBS को कोर बैंकिंग सोल्यूशन। पी अभी यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन रहेगा 75 ईयर्स तक का, उसका किसी बैंक में अकाउंट है, उसमें पेंशन आ रहा है और उसका एक ही अकाउंट है, वही बैंक है, तो वो बैंक क्या करेगा, अपने साथ का पेंशन जो कैलकुलेट करेगा उसके ऊपर टैक्स वर्कआउट करेगा, उसका डीटेल्स काटेगा। लेकिन कंडीशन नहीं है, उसका एक ही अकाउंट होना चाहिए, वही बैंक होना चाहिए, और वहाँ से सिर्फ इंटरेस्ट इनकम और एफडी इंटरेस्ट इनकम रहेगा और पेंशन रहेगा, दूसरा कोई भी इनकम नहीं रहेगा। उसको बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म 12 बीबीए में, तो कितना टीडीएस काटते हैं इस सिनेरियो? स्लैब रेट के हिसाब से उसका पूरा वर्किंग करेगा, बैंक एज ए कंपटीशन करेगा, उसको टैक्स अगर काटेगा नहीं जाएगा नहीं काटेगा। One account means you are talking about the one person, one account holder, or Suppose one now- person having the different types of in a single bank, like FD is having Only that another time, account. only that time. Suppose मेरा But पेंशन a है, type of multiple accounts he can handle. Yes. But a person should be one. हाँ, Like if he's having salary, if he's having FDs, Salary some का pension- investments, so salary salary का- will go there. हाँ, ये पेंशन है। Then FDs and all. सपोज मेरा पेंशन आता है एसबीआई अकाउंट में, और मेरा एसबीआई अकाउंट नहीं Then होना the चाहिए, person is same. सेम You are not getting that. The person is getting the pension. He has the FDs in the same bank. Yes, yes. Right? He has also made some Saving. investments from that bank. Then what will be the status of that person? सेविंग इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड एफडीआर एंड पेंशन इनकम, और कोई इनकम नहीं चाहिए उसमें, Pension, saving, और एफडी इंटरेस्ट। FD is also included. That FD लेकिन will सेम also be बैंक, लेकिन बैंक calculated. शुड बी सेम। Bank should be same. Means इसमें- FD and what about the investments? नहीं वो नहीं, फिर वो होगा तो फिर यहाँ नहीं आएगा। He has done some investments from that bank. If he has taken the mediclaims from that bank, मेडिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, medical insurance and all. वो तो खर्चा है ना, इनकम का है। Only FD will be. Yes. Investments FD and will saving. not. एफडी एंड सेविंग इंटरेस्ट। Saving interest and FD. And is there any limit on the saving amount? नो, After how much amount the saving account can go for the TDS in the banks? सेविंग अकाउंट में भी है ना? No, after certain limit of No. interest, no? नो, Saving account पे जो interest आएगा वो, मैं डीटेल है नहीं। then which account will be eligible for the TDS? ये You said CD. ये कंप्यूट करेगा पूरा इनकम। अच्छा, सपोज मेरा पेंशन आ रहा है एसबीआई अकाउंट में और मेरा एफडी है वहाँ पे और सेविंग इंटरेस्ट भी यहीं पे आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा, अपने सामने इनकम कंप्यूट करेगा। then on that it will be calculated, Yes. no? So that is only I am telling you, ना? Saving account पे interest कितना compute होएगा कि उसके जाएगा? Total करेगा, FD Total का करेगा, भी, total करेगा। saving का भी और investments का भी. बिल्कुल, बिल्कुल। Investments also. इन्वेस्टमेंट नहीं, Investment. एफडी और सेविंग। Only savings. Now, one of the one more important. See, many a times what happens, suppose I had a locker in that bank, right? And what the bank do, they will ask you to make one FD as a security. Yes. And on that FD, the interest is being used as a locker deposit. Yes. In that case, what will be the situation? How the TDS टोटल will के be? इंटरेस्ट काउंट होगा, वो भी लिमिट का जाएगा। अगर 40,000 के अंदर है तो बैंक को डीटेल्स नहीं काटना है, 40,000 के ऊपर रहेगा तो डीटेल्स काटना है, अगर सीनियर सिटीजन रहेगा तो 50,000 हो जाएगा। Yeah, slab is there, right? 40,000. Slab is there. That is one. And it is only on senior citizen.
Yes, 75. Or for all? 75 years. Above 75. 75 and above. And what about the other persons? Other account holders? दूसरा section में जाएगा. Okay, you are talking about it. 94Q. जब कोई बिजनेसमैन गुड्स परचेस करता है किसी से और उसकी टर्नओवर लास्ट ईयर की खुद की टर्नओवर 10 करोड़ में है और मैं किसी से परचेस कर रहा हूँ जिसका अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है तो मुझे डिटेल्स करना है रेट ऑफ 0.1%. सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ है ऊपर है और मैं बीस से परचेस कर रहा हूँ 60 लाख से ज्यादा तो मुझे 60 लाख के ऊपर जो है एक्सेस ऑफ 60 लाख जो अमाउंट है उसको 1% काटना है. No, I didn't get this. Can you say again? सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर खुद का 10 करोड़ है लगभग और मैं आपसे गुड्स परचेस कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 50 लाख से लगभग है. दो कंडीशन मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के अबव होना चाहिए और मेरा जो परचेस है आपसे वो 50 लाख से अबव होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो मुझे डिटेल्स करता है आपका एट द रेट ऑफ 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख. जो ऊपर का अमाउंट है वो है एग्जैक्टली मान लो 60 लाख हाँ, का हाँ, खरीदा, 10 लाख में 10 लाख Then PAN is not then 5%. 5%. और गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेगा उससे हम लोग कोई परचेस कर रहे हैं तो उसमें डिटेल्स नहीं है. If the seller is CG or SG, then TDS is not required to be deducted. यस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहेगा उससे Only the seller. If Yes. the buyer is CG, SG, हाँ, उसको काटना है ना. then we have to deduct. यस 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 क्योंकि सामने इंडिया हो सकता है उसकी इनकम टैक्सेबल है नहीं है कैसे मालूम करेगा. If seller is CG or SG, then no required of Yes. deduction. Irrespective of the amount. टैक्स सेविंग कहाँ का पॉसिबल है जहाँ सामने इंडिविजुअल रहेगा. Irrespective of the amount. यस Irrespective. 50 lakhs. 50 lakhs. Even the CG, SG. यस स्लैब इट्स लास्ट का 94 आर बेनिफिट ऑफ पर्पसेस हम लोग किसी को देते हैं अगर आउट ऑफ जो बिजनेस समझो अभी मैं किसी एडवोकेट को केस दे रहा हूँ और केस जीत गया उसको मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूँ एडिशनल कार्ड दे रहा हूँ कुछ भी दे रहा हूँ या कोई डॉक्टर को हम लोग कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी उसमें डिटेल्स काटना है अगर उसका वैल्यू 20 लाख के ऊपर रहेगा पर ईयर एट द रेट ऑफ 10% काटना है. ये बेसिकली फार्मास्यूटिकली लाया गया उसमें टैक्स में बहुत था डॉक्टर लोग सब छुपा देते कुछ दिखा देते तो उसके लिए प्रोविजन सेट किया गया. और अगर मेरा टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 1 करोड़ या 50 लाख से नीचे रहेगा तो मुझे डिटेल्स नहीं काटना है और 20 लाख के ऊपर रहेगा तो डिटेल्स काटना है बेनिफिट रहेगा. अगर बेनिफिट काइंड में रहेगा सेम अगर मैं किसी को कार दे रहा हूँ उसका डिटेल्स कैसे करूँगा उसको पैसा दूंगा मैं या मैं खुद डिटेल्स करूँगा वापस जाओ अपने जेब से तो जाके उसको गिफ्ट रिलीज करूँगा. But pay must be resident. यस Satisfying the नॉन रेजिडेंट के लिए 195 सेक्शन है. non-resident के लिए 195 सेक्शन है. सर इसके पहले वाले जो स्लाइड थी where you said that if my turnover is more than 10 crore. हाँ, In जो case बायर when रहेगा it- हाँ, in case when it is less than 10 crore then फिर डिटेल्स नहीं है. nothing. नहीं. Okay. नहीं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. 10 करोड़ का 50 लाख दोनों सेटिस्फाई हो तो ही आएगा डिटेल्स तो नहीं आएगा. मतलब अगर इनकम 10 करोड़ से कम है इनकम पे टर्नओवर सॉरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और जो आप परचेज कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा ही है जो वो भी डिटेल्स नहीं करना. तो भी नहीं नहीं दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए सर. एंड ओके कोई क्वेरी. out of all these things Yes. I am just a salaried person. Yes. What should I focus on? अगर आपका सैलरी 12,75,000 के नीचे है आप न्यू स्कीम में जाएंगे जैसे टीचर में टैक्स कोई भी नहीं आएगा वैसे. उससे कम ठीक है आपको जैसे इंडिया में जाएगा 12 लाख वाले कोई भी टैक्स नहीं है और सैलरी को 12,75. एक और एक जनरल नोशन है ना मतलब आई एम लिटिल लेस इनटू मनी सो कई बार ऐसा होता है ना कि पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं अभी वी आर टैक्स पेयर्स तो हमारा तो सैलरी ये सब कटता है हमारा बैंक भी लाइक एकदम एक्सपोज है पूरा अकाउंट तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ चलो इन्होंने मुझे 50,000 मेरे इसमें डाले तो मैं अक्सर रिलक्टेंट रहती हूँ कि मेरे अकाउंट में नहीं आना
So my relative, especially my husband, keeps on saying, don't get anything in your account, फिर तेरा टैक्स का प्रॉब्लम होगा. तो I don't understand how it works. लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सपोज मैंने आपको दिया 50 है, हाँ. तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? Online suppose मतलब. नहीं ऑनलाइन हाँ. इसका For what लोन purpose? है, For what purpose? हाँ लोन है, फीस है, या कुछ कंसल्टेंसी है. लेट्स से कि मेरा लेट्स से समय मेरे अकाउंट में भेजना चाहता है पैसा फॉर वॉट एवर रीजन. आई मीन कोई ऐसा खास स्पेसिफिक रीजन ही, या फिर मान लो मेरे हस्बैंड अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में डालना चाहते हैं बिकॉज ही डजंट वांट टू शो इट इन हिज अकाउंट, और मेरे अकाउंट में डालना चाहते हैं अगर हाँ तो मैं चलता है, कोई दिक्कत नहीं. चलता है ना. हाँ. लेकिन सारा अगर आपके अकाउंट में डालेंगे हाँ 20,000 के ऊपर रहेगा, हाँ, तो आपको वापस रिटर्न भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो बैंक चेक ही क्योंकि करना वो फिर मेरे इनकम में दिखेगा ना, जो मेरे इसमें आएगा वो नहीं, इनकम एज अ लोन दिखेगा, आपको लोन वापस करना है सेम वे, हाँ. बैंक चेक होती है. ओ, अगर 20,000 के ऊपर रहेगा, अगर 20,000 के अंदर है, अभी 10,000 हो गया, पहले 20,000 अभी 10,000 हो गया, हाँ, तो आपको कैश पे कर सकते हैं. okay. सपोज हमने आपको 10,000 ट्रांसफर किया, तो यू कैन पे इन कैश ऑल्सो. लेकिन 20,000 किया आपको या 30,000 किया, तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, बैंक चेक ही करना पड़ेगा. और अगर डिले होता है तो 1 day डिले होता है तो डिले का कोई इशू नहीं है, वो तो आपका से अंडरस्टैंडिंग है. मैं आपसे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है. शुरू में किसी को लोन दिया 1 लाख का लोन, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ तो मेरा इनकम आ जाएगा. अगर चार फ्रेंडली लोन है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कोई डिटेल्स नहीं है. वो म्यूचुअल एंड तो वो सेम अकाउंट ईयर में होना चाहिए, कभी भी रिटर्न कर सकते हैं. लेकिन क्लोज मत फिर चाहिए. वो सेम मैनर होना चाहिए. Manner- जैसे आई गिव समबडी 50,000 रुपीज Yes. कपल ऑफ इयर्स अगो, तो वापस उसी अकाउंट से मेरे पास आना चाहिए. अकाउंट कोई होना चाहिए, अच्छा. लेकिन बाय बैंक होना चाहिए. ओके. तो ऐसा होता है ना, कई बार ट्रांजैक्शंस हम करते हैं स्पेशली सोसाइटीज में ना, हम जब कुछ भी करते हैं इन्वर्टर्स खरीदे, हेवी इन्वेस्टमेंट्स करें, तो हमेशा बोलते हैं कि जीएसटी, आई मीन सॉरी बट आई एम डिविएटिंग, जीएसटी भी पे करना चाहिए ये वो. मुझे एक समझ में नहीं आता है कि ये टीडीएस कटेगा, जीएसटी पे करना ये. जीएसटी तो बड़ा इंडायरेक्ट टैक्स है ना. बट हाँ राइट, वो तो आप सेल परचेज से ट्रांजैक्शन करोगे उस पे जाएगा. हाँ. ये इनकम पोर्शन जाता है ना, इनकम टैक्स. हाँ टीडीएस गोज ऑन इनकम इनकम वाला. पोर्शन जो डायरेक्ट टैक्स है. हाँ. जीएसटी तो तो आपका अब हम लोग तो सैलरीड वाले हैं, तो हम तो कुछ छुपा नहीं सकते, लेकिन जो लोग लाइक बिजनेस कर रहे हैं, जो सैलरीड क्लास नहीं है, एंड हम तो पे करते हैं टीडीएस, लेकिन जो लोग नहीं पे करते उनका क्या? आई मीन लाइक इज देयर एनीथिंग ऑफ टीडीएस तो जो पेयर है हाँ. वो रिस्पांसिबल है आपका टीडीएस काटने का. सपोज मैंने आपसे लोन लिया है हाँ और आपको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. हाँ गवर्नमेंट को क्या था कि आप हो सकता है टैक्स एग्जेम्पशन करें, आप इनकम टैक्स देंगे, राइट. ठीक है. इसके लिए मैंने को रिस्पांसिबिलिटी डाल दी कि आप उसका टीडीएस काटो. टीडीएस काटने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन देना है. और आप नहीं काटते हो तो मैं लाइव हूँ. हाँ, तो मतलब जो जिसको मेरा जिसको तो- लेना है, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा, हाँ उसमें टैक्स आएगा 30%. तो मैं क्यों रिस्क लूँगा? मैं तो काटूंगा ना आपसे. क्योंकि अभी तो ये सारे रेजिम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, मैंने नोट किया, लेकिन पहले तो मतलब बहुत चीजें काफी पहले बहुत रिलैक्स थी. नोबडी वुड बॉदर ना कि ये काटना है, इतना काटना है. बेसिकली लेकिन टैक्स अभी एग्जेम्पशन की वजह से किया गया है. हम्म, रिस्पांसिबिलिटी है पेयर पेमेंट करने के लिए टीडीएस काटो, और सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देना है मुझे जो ब्रीच कवर करेगा. आपका पैन नंबर, आपका सोर्स क्या है, कि मैं कौन से नेचर का पेमेंट दे रहा हूँ, अमाउंट क्या दे रहा हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन जाएगा पोर्टल पे, जो आपको 26 ईयर्स में दिखता है. Sir, can you please elaborate on new scheme जो अभी आपने बताया? न्यू स्कीम में क्या है, बाय डिफॉल्ट न्यू रिजिम में. न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं है. चलिए आप सैलरी वाले हैं, आपको 12,70,000 होता है, कोई टैक्स नहीं है. लेकिन कोई भी जो क्या बोलते हैं टैक्स सेविंग बेनिफिट, एलआईसी, पीएफ, कोई बेनिफिट नहीं है. सीधा 12,75 दो, आप ये दो. अगर आपने ओल्ड स्कीम ऑप्ट किया तो आपको फिर डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा. आपका 1,50,000 डिडक्शन है, एलआईसी, पीएफ और मेडिक्लेम वगैरह. ये तो हुआ इस करंट ईयर के लिए, बट टैक्स का तो इतना ये नहीं था, उसका ये 12 लाख के अंदर ही डिडक्शन था, तो फिर वो कैसे? वही मतलब अगर ओल्ड स्कीम किया आपने तो आपको बेनिफिट मिलेगा अलाउंसेस का, टैक्स जो टैक्स बेनिफिट जो है. और न्यू स्कीम किया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है. लास्ट ईयर तक 7 लाख था, 7 लाख के ऊपर टैक्स था, 7 लाख के ऊपर टैक्स उसके ऊपर टैक्स था, जो अभी 12 लाख हो गया. वन लास्ट क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू टीडीएस. जैसे मैम ने बोला, मुझे भी ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आइडिया नहीं है. तो
TDS का तो चलो अभी समझ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की। दूसरी क्या चीज़ें हमें एज ए इंडिविजुअल जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए फाइनेंस में? एज अ पेयर की जो कही एज ए इंडिविजुअल अज्यूम दैट मुझे कुछ भी नहीं पता फाइनेंस रिलेटेड, कॉलेज जितना ही करके देता है, इनकम टैक्स रिटर्न भर के देता है, उसके अलावा मेरे को क्या ध्यान देना उसके चाहिए? अलावा अगर कोई आपका इनकम जाएगा तो आपको उसमें ऐड करना है, इनकम शो करना है, आपका इंटरेस्ट इनकम है, लॉटरी है, या कोई भी इनकम है, आपको आपकी सैलरी में ऐड करना है, अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल करना है। सर अगर somebody who is depositing money in my account and then I transfer exactly same amount to a next person, how is this going to reflect in my account? मैंने आपसे लोन लिया, आपने वो लोन किसी मैंने वो लोन किसी और को दिया, तो सेम ट्रांजेक्शन आप लोग करना चाहिए रिवर्स। बेसिकली जो एंट्री है उसका अलग होना चाहिए, एंट्री क्लोज होना चाहिए। मैंने आपसे लिया वापस आपको दूंगा, आपने किसी और को दिया वो आपको देगा वापस। तो अगर नहीं हुआ तो मेरे अकाउंट में पैसा आता है और मैं उसमें से 20,000 किसी को दे देती हूँ, तो ही नीड्स द मनी, लेट्स से लोन, बट दैट डजंट कम बैक टू मी। तो तो फिर आपके बुक्स में वो सैलरी वाले बुक्स में मेंटेन नहीं करते, हम लोग बुक्स मेंटेन करते हैं। तो मेरे बुक्स में रहेगा वो कि मैंने मैडम को लोन दिया किसी, वो एंट्री क्लोज नहीं होगा जब तक आप मुझे वापस नहीं देंगे। नहीं, मैंने आपको लोन दिया, आपने नहीं दिया, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे वापस नहीं किया, मैं वही तो बोल उसका रहा हूँ, रिपोर्टेशन मुझ पे क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं ना। मेरे बुक्स में कहा है ना कि मैंने आपसे लोन लिया, वो क्लोज नहीं होगा एंट्री। लेकिन सैलरी वाले का बुक्स मेंटेन नहीं करते, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या होगा। बिजनेस वाले बुक्स मेंटेन करते हैं, उनको मालूम पड़ जाएगा तो एंट्री खराब है। Sir, why any particular privilege given to senior citizens? Everywhere we have come across this. चाहे वो बैंकिंग हो या कोई भी, ऐसा पर्टिकुलर रीजन क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी सुविधा है और क्या, बीइंग सो सीनियर सिटीजन्स उनको सुविधा दी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी इसीलिए बिकॉज दे नीड टू गेट सम बेनिफिट, नो मेनी ऑफ देम आर सिंगल, नोबडी टू लुक आफ्टर, सो उनके लिए वही मतलब दे आर अ कैटेगरी आई बिलीव वेयर facilities need to be given to them. Like my mother is a pensioner, I mean she gets nice pension every year. That's why I was asking 75 years के ऊपर में क्या होता है ना, उनको बटन देना नहीं है, टैक्स रिटर्न फाइल करो, कंप्लायंस करो, वो कहाँ से करेंगे? उसके कोई सिंपलीफाई कर दिए। Yeah, any other questions? कोई सवाल है किसी को? हम तो बिंदास पूछ रहे हैं, हमको जो नहीं आता है हम बस पूछ रहे हैं, because we need to make the most of it. And we can be like very informal and ask, because this whole session is that you know हमारे दिमाग में जो भी अभी सवाल आ रहे हैं, we can ask you to ask him something. Okay. Thank you. Thank you. Good morning, Namaste. I am Girish Makhija from this college, last year batch. मेरा अभी पहले सबसे पहले मैं HSM बोर्ड कॉलेज प्रिंसिपल मैम और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमको यहाँ पे उन्होंने बुलाया और आपसे नॉलेज शेयर करने के लिए हमें हमारा उत्साह बढ़ा। और अभी नवीन सर का भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने भी आपको सब TDS वगैरह के लिए जो भी उससे प्रोविजन रिलेटेड थे वो बताए। अभी मेरा जो पार्ट है वो कंप्लायंसेस से रिलेटेड है। इसमें कंप्लायंस मीन्स आप जैसे TDS को अभी आपने समझ लिया क्या होता है क्या है, लेकिन उसको कंप्लाई कैसे करना है और उसको डे टू डे रूटीन में कैसे आपको लाना है और आप जो करते हैं एक्टिविटीज उसको कैसे करते हैं और कैसे उसको लास्ट जो रिटर्न फाइल होता है और जो आपको क्रेडिट मिलती है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले है 10 मीन्स टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, मीन्स 10 जो जैसे हमारा पैन रहता है वैसे 10 रहता है। तो जिसको भी TDS अप्लीकेबल होती है, जो कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को उसको 10 अप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 49 फॉर्म B में अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसीजर दोनों है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, बस आपको केवल वो फॉर्म फिल करके NSDL के जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहां पे सबमिट करना पड़ता है। तो आपको 10 अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, वो आपका हमेशा के लिए वो सेम रहता है। जो इंस्टीट्यूट या जो एंटिटी रहती है उसके लिए वही उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करनी रहती है और उसके थ्रू ही रिटर्न फाइल करने रहते हैं। और उसमें आप कभी भी आगे चल के चेंजेस कर सकते हैं एनी फील्ड में, नेम में, अपना एड्रेस में,
कुछ भी चीज में रेस्पॉन्सिबल पर्सन या ईमेल आईडी मोबाइल, तो उसके लिए आपको वापस 10 करेक्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है 49D का ही, उसके थ्रू आप वो करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके बाद 10 लॉगिन आईडी ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, वो आपने सुना होगा। जैसे अभी हम पैन का रजिस्टर करते हैं अपना इनकम टैक्स लॉगिन में क्रिएट करते हैं रजिस्ट्रेशन, वैसे ही पैन का रजिस्ट्रेशन करना रहता है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे होता है। वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर करके उसके थ्रू आप पेमेंट्स, चालान और रिटर्न फाइलिंग के CIF चालान जब जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रेसिस का लॉगिन आईडी पासवर्ड। प्रेसिस एक अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सुविधा दी हुई है, CPC बोलते हैं उसको, प्रेसिस की। उसपे प्रेसिस पे आप सब अपने डिफॉल्ट्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं और अपने कुछ फॉर्म्स वगैरह जो नेसेसरी फॉर्म 16 वगैरह सब अप्लाई करने के लिए प्रेसिस का पोर्टल यूज होता है। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी टाइम आ गया, उसके बाद TDS पेमेंट कैसे करनी है। TDS पेमेंट पहले ऑफलाइन प्रोसीजर था, बैंक के थ्रू वगैरह सब चेक जमा करते थे। अभी एट प्रेजेंट ऑनलाइन प्रोसीजर है। इनकम टैक्स लॉगिन के थ्रू, 10 लॉगिन के थ्रू आपको चालान क्रिएट करना है। उसमें वेरियस फैसिलिटीज है, कैसे कैसे आपको फाइल करना है, कैसे पेमेंट करनी है, थ्रू ऑनलाइन करना है, जीपे के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एट बैंक काउंटर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अंदर। आपको क्रिएट करके अंदर 281 चालान में सिलेक्ट करके उसमें अंदर सब सेक्शन, जैसे भी आपको 94C में सिलेक्ट पेमेंट करनी है तो 94C सिलेक्ट करना है, 94J में करना है तो 94J सिलेक्ट करना है, 94A में सिलेक्ट करना है तो A सिलेक्ट करना है। ऐसे ऐसे अलग अलग मीन्स आप जिस तरह की पेमेंट्स कर रहे हो तो उस तरह के चालान पे कर रहे हैं। वो चालान पे कब करने हैं, मंथ एंड के बाद। तो एवरी मंथ आपको, जैसे अभी अप्रैल हो गया तो 7 मई लास्ट डेट थी अप्रैल पेमेंट, TDS पेमेंट करने की, 7 इज लास्ट डेट। अगर वो आप 7 को पे नहीं करते हैं तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है गवर्नमेंट के हिसाब से, 18% पर एनम का, 2% का, मीन्स अप्रैल का भी इंटरेस्ट लगेगा, मई का भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप विदिन 7 पे करते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा वो TDS के अमाउंट के ऊपर, और अमाउंट कितना भी रहने दो, इंटरेस्ट रेट सेम है। और इसके बाद जैसे चालान पेमेंट हो जाता है, आप चालान बैंक में लेके आते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं या किसी भी सोर्स के थ्रू पे करते हैं, तो वही चालान की रिसिप्ट आप 10 लॉगिन आईडी से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद वो उसको CIF चालान फाइल जनरेट करके आपको रखना है रिटर्न फाइलिंग प्रिपरेशन के लिए। अभी अगर चालान मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? मॉडिफाई आपको क्या फील करना है उसके लिए मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आपको क्या फील मॉडिफाई करनी है चालान में। यानी कुछ अगर मिस्टेक हो जाता है, सेक्शन अगर रॉन्ग हो जाता है, सेक्शन रॉन्ग हो गया तो आप प्रेसिस की साइट पे उसको करेक्शन कर सकते हैं। अभी चालान पेमेंट के बाद रिटर्न फाइलिंग की प्रिपरेशन चालू होती है। मींस रिटर्न फाइलिंग में अभी इसमें 2 तरह के रिटर्न्स करते हैं, एक 24Q, एक 26Q। 24Q मींस ओनली रिलेटेड टू सैलरीज एंड 26Q रिलेटेड टू अदर देन सैलरीज, उसमें सब आ गए। अभी जैसे जैसे आप अभी पूरे महीने की आपने सब पेमेंट्स करी, उसमें सैलरीज भी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, 94J भी आ गया, C भी आ गया, अदर सेक्शंस भी आ गए, लेकिन रिटर्न्स 2 जाएंगे इनमें और क्वार्टरली रिटर्न्स जाएंगे। पेमेंट मंथली होती है, रिटर्न्स क्वार्टरली होते हैं, क्वार्टर वाइज। और उसमें आपको हर मंथ के सब डिटेल्स, सैलरीज के, अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के, प्रोफेशनल फीस के सब प्रिपेयर करने हैं विद चालान प्राइस डेटा। वो डेटा आपको कंपाइल करके एक रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी रहती है, उसके थ्रू आपको रिटर्न पेपर करना रहता है, या सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप रिटर्न पेपर कर सकते हो। और NSDL के पोर्टल पे, प्रोटेन NSDL पे फाइल FUD फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी फैसिलिटी रहती है, वहां पे वो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी फाइल रहता है, वो आप फिल करके उसमें सब चालान की डिटेल और डेबिटरीज की डिटेल, क्रेडिटर्स की डिटेल सब फिल करके वो चालान ये रिटर्न क्रिएट करना पड़ता है। और 2 टाइप के रिटर्न 24Q, 26Q रिटर्न फाइल प्रिपेयर कर सकते हो। और वो प्रिपेयर करके आपको विदिन ड्यू डेट्स फाइल करना है रिटर्न। अभी पेमेंट्स की ड्यूज तो मैंने आपको पेमेंट TDS डेट की पेमेंट ड्यूज बता दी, एवरी 7 को पेमेंट करनी है कैसे भी, मींस अगर वो नहीं की तो इंटरेस्ट 2 मंथ का लग जाएगा। अभी इसी तरह से जैसे साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, अप्रैल मई जून, क्वार्टर 1 मींस ऐसे इसी तरह से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो हर क्वार्टर्स की हर मंथ की पेमेंट करनी है क्वार्टर वाइज, और क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल करना है।
अभी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्वार्टर वाइज जैसे फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल 25 टू जून 25 क्वार्टर 1 उसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई के अंदर राइट फाइल करना है। इसी तरह से सब महीने में क्वार्टर 2 का अक्टूबर में जाएगा, क्वार्टर 3 का 31 जनवरी जाएगा और लास्ट क्वार्टर का डेट है ना वो एक्सटेंडेड रहता है, वो 31 मई रहता है उसमें। और लास्ट क्वार्टर में आपको सैलरीज की डिटेल जो सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं 24Q फॉर्म, उसमें आप एक चीज और ध्यान से देखनी है, उसमें फुल ईयर की जो भी है सैलरी की डिटेल वो क्वार्टर 4 में आपको मेंशन करने हैं, तभी जाके वो क्रेडिट दिखेगा सामने जो एम्प्लॉई है उसको 26 ईयर्स में। वो आपको 24Q फॉर्म में आपको वो ध्यान देना है लास्ट क्वार्टर में। और 24Q फॉर्म अगर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 आपने फाइल कर दी है, क्वार्टर 4 के टाइम जब भी आपको कोई भी एम्प्लॉई की आपको कुछ डिक्लेरेशन लेनी है तो इसकी कितनी सैलरी है, इसकी अदर काउंसलिंग करना है और सैलरी है, तो वो आपको पहले पेपर काउंट उसकी कैलकुलेशन करनी है टैक्स स्लैब के हिसाब से हर एम्प्लॉय की, तो कितनी सैलरी उनको गई है या कितनी प्रोफेशनल फी गई है जो भी गया है। उसके बाद उनसे एक डिक्लेरेशन लेनी है, वो क्वार्टर 3 के बाद माने क्वार्टर 4 के पहले ही आपको उनकी डिक्लेरेशन लेनी है आपकी क्या क्या इनकम है इसके अलावा, तो वो डिक्लेरेशन आपको फाइल में रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है, वो भी नोट करनी है, वो उसको भी कॉम्पिटिशन करके फिर क्वार्टर 4 में उसकी वो हिसाब से डीडीएफ डिडक्ट करनी है और उनको बताना है, इन्फॉर्मेशन देना है। और अगर अभी तो मोस्टली डिडक्शंस न्यू ओल्ड रिजीम वाले तो नहीं जा रहे, न्यू रिजीम में जा रहा है। अगर कोई ओल्ड रिजीम में जा रहा भी है तो उनसे डिडक्शंस के प्रूफ वगैरह भी लेने हैं, तो आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है पीपीएफ में, एलआईसी में, एनीथिंग, हाउसिंग लोन, जो भी है डिडक्शन अवेलेबल वो आपको वो एक डिक्लेरेशन में आपको एम्प्लॉय से लेना है क्वार्टर 3 के बाद। जैसे आप क्वार्टर 4 में उनकी पूरी कैलकुलेशन कर पाए, उनकी फिर कैलकुलेशन आपको किस बेस पे करनी है वो एम्प्लॉय को ऑप्शन चूज करना है, उनको ओल्ड रिजीम में जाना है कि न्यू रिजीम में जाना है, वो आप उसी डिक्लेरेशन में उनसे लिखवा के ले सकते हैं, वो आपको कौन से रिजीम में जाना है वो हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन जो होगा वो क्वार्टर 4 के ड्यूरेशन में होगा, क्वार्टर 3 एंड होने के बाद, क्वार्टर 3 एंड होने के बाद, क्योंकि क्वार्टर 4 तक हमको डिले नहीं करना है, क्वार्टर 4 होने के बाद हमको नहीं कुछ लेना है, वो उनके पहले अडॉप्ट देखना है। क्वार्टर 3 तक तो लगभग आपका 75% सब सेटल हो जाता है क्या क्या है, और लगभग जनवरी फेब में पता चल जाता है एक्सपेक्टेड क्या इनकम होगी या क्या होगी, लगभग उसी पॉइंट तो वो अडॉप्ट बताते हैं। अगर कुछ और ज्यादा कम आ गया तो आप बाद में डीडीएस भी और काट सकते हैं या एम्प्लॉई सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकता है, और अगर उसकी कोई इनकम और आ गई तो, या अगर ज्यादा डीडीएस कर भी नहीं तो रिफंड भी क्लेम कर सकता है एम्प्लॉई। और जो डिक्लेरेशन है जो देना है डिक्लेरेशन दूसरी इनकम है कि नहीं वो कब तक करना होगा? वो क्वार्टर 3 के बाद लगभग दिसंबर जनवरी में देना चालू कर देते हैं सब, जनवरी दिसंबर फरवरी में उसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, लगभग कैलकुलेशन के लिए आपको, क्योंकि क्वार्टर 4 लास्ट डिसीजन रहता है डीडीएस काटने का, आपकी किसकी कम कटी, किसकी ज्यादा कटी, किसकी क्या है और किसकी क्या इनकम है लगभग, लेकिन सब एक्सपेक्टेशन मालूम हो जाता है सबको भी क्या होना है, क्या होने वाला है, कितनी इनकम होने वाली है, लेकिन वो सब डिपेंड करता है जो एम्प्लॉई है डिक्लेरेशन कितनी दे रहा है, कौन सी करेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, वो एम्प्लॉय को पता नहीं रहता है। लेकिन लायबिलिटी एम्प्लॉय की है, लेकिन वो डिक्लेरेशन की वैल्यू है, अगर उसके अलावा भी कुछ आ गई तो एम्प्लॉय को टैक्स भरनी पड़ेगी उसके इनकम के हिसाब से। अगर ज्यादा डीडीएस कर भी नहीं तो रिफंड क्लेम कर सकता है एम्प्लॉय। लेकिन अभी ये नया टैक्स रिजीम आ गया, इसमें तो हमारा कुछ कटना ही नहीं है अभी, कटना नहीं है, फिर भी आपको फिर भी एक डिक्लेरेशन लेके रखनी है आपको सेफर साइड पे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ठीक है वो बता देगा मेरा अदर इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या एफडी का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी जो भी है, क्योंकि अदर देन सैलरी तो पता नहीं चलता है ना एम्प्लॉयर क्या कर रहा है एम्प्लॉय, तो एक डिक्लेरेशन लेंगे तो एक सेफ्टी हो जाएगी एम्प्लॉयर के लिए। So, अगर मेरा सैलरी अकाउंट है यहाँ पे, अब उसमें सिर्फ सैलरी आती है, मेरी तो सिर्फ सैलरी आती है, बाकी आई डोंट डील, लेकिन और बहुत लोग हो सकते हैं सैलरी के अलावा बहुत कुछ उसमें आता है, so that means the declaration they have to read the declaration. do we do that? Do we do that? No, ऑप्शनल है, नहीं ना? अदर इनकम आप बता रहे ऑप्शनल है, लेकिन आपको टैक्स पे करना है, हाँ, अगर इतना नहीं करता आपको खुद से करना है।
लेकिन डिक्लेरेशन लेके तो सेफ है थोड़ा एम्प्लॉयर मींस लेकिन अपने अकाउंट तरफ तो से। वही है ना, अभी मेरा सैलरी अकाउंट है, अगर मैं उसमें बाकी के भी और चीजें कर रही हूँ उसके भी पैसे आ रहे हैं तो आप शेयर का डील कर रहे हैं, हाँ रिश्तेदार को नहीं बता रहे, हाँ आपको खुद के आइडिया में नहीं कर रहे हैं। हाँ सब, लेकिन शेयर छोड़ दो, शेयर तो बड़ी बात है, और भी कुछ भी कर रही हूँ मैं, मेरे वहाँ पे पैसा इनफ्लो मेरा उसी अकाउंट में आ रहा है, तो एम्प्लॉयर को तो सिर्फ सैलरी का ही पता है ना, बाकी तो नहीं पता है एम्प्लॉयर को। अलग से आपका That is optional. आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं वही बताएंगे मैं बोल रही Employer हूँ, is उनका for कहना है safer कि- side. Exactly. Employer for safer side, they want declaration. If you want to declare, you can declare, and accordingly tax will be deducted. If you are not showing any income, Then the then employer it is is not liable, na? it is purely your responsibility to हाँ, pay the tax. that's what I'm saying. You are saying you have to. तो मैंने बोला अगर एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है, because he doesn't want to show नहीं, legal. सेफ साइड एम्प्लॉयर अपना डिक्लेरेशन लेके रख सकता है अपने सेफ करने के लिए, हमने भाई अपॉर्चुनिटी दी। वो लास्ट ईयर से employee को। ऐसे सर्कुलर आया है गवर्नमेंट का कि डिक्लेयर करना है और फिर ऑप्शनल रखना है, Right, that's a तो different इसलिए thing. मैनेजमेंट ने सर्कुलर भेजा है कि सारे अभी सर्कुलेट भी किया था हमने। No, I am unaware. That's why I was asking. या इसीलिए मैंने बोला ये मुझे नहीं पता ये ओके। अभी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग जैसे ड्यू डेट्स बताइए, अगर वो ड्यू डेट्स पे आप फाइल नहीं करते हैं तो उसकी भी पेनल्टी है, वो 234E में 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी है, उस पर बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है। और उसमें कैसे है 200 रुपीज पर डे, कैसे है पेनल्टी, जितने डेज डिले हो गए उतनी इंटू 200। अगर टीडीएस जो चालान है या टीडीएस जो लायबिलिटी है, पेनल्टी वहां तक ही है। सपोज इन केस अगर ज्यादा डिले हो जाता है और नंबर ऑफ डेज 200 आते हैं और टीडीएस कम है, तो टीडीएस जितना है उतना ही पेनल्टी लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एक एग्जांपल में 20 अगर कुछ फॉर एग्जांपल रेट है इसका, तो 21 का अगर 10,000 टीडीएस है और 109 डेज डिले है रिटर्न फाइल के, तो उसकी 21,800 पेनल्टी आएगी, लेकिन पेनल्टी 10,000 ही आएगी रिस्ट्रिक्टेड टू टीडीएस अमाउंट, 21,800 नहीं आएगी। और अभी चालान करेक्शन के लिए आप पूछ रहे थे, तो आप उसमें चालान करेक्शन में असेसमेंट ईयर, मेजर बोर्ड, माइनर बोर्ड, नेचर ऑफ पेमेंट वो आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू एसएसपी पोर्टल पे, लेकिन वो विद इन 7 डेज आपको चेंज करने हैं। जब डिपॉजिट किया ना विद इन 7 डेज करना है चेंजेस। और ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल चेक्स है, सेक्शन एक ही है 194C, मल्टीपल चेक्स है और हम चालान एक ही क्रिएट करें, अमाउंट मर्ज कर, हाँ एक ही कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अभी टीडीएस चालान करेक्शन और टीडीएस चालान करेक्शन और टीडीएस रिटर्न इसकी करेक्शन के लिए, जैसे अभी टीडीएस रिटर्न फाइल की है उसके बाद टीडीएस अगर कुछ करेक्शंस करनी है टीडीएस रिटर्न्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू एसएस के पोर्टल पे और थ्रू आईडीडी टाइम के थ्रू पोर्टल पे। अगर इसका पैन नंबर रॉन्ग हो गया, इसका चालान डिटेल रॉन्ग हो गया, तो आप करेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और इसमें अगर कोई पैन नंबर रॉन्ग देता है तो उसका 20% से 20% के हिसाब से लायबिलिटी कर के ये डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। सपोज आप किसी एम्प्लॉय के पैन नंबर रॉन्ग लिखे रिटर्न में, रॉन्ग पुट किए, तो उसकी एक्चुअली करेक्ट था लेकिन आपने टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो वो आपके रिटर्न में पेनल्टी आ जाएगी, रॉन्ग पैन की पेनल्टी 20% के हिसाब से आपको टैक्स का वो डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगा। फिर आपको वो करेक्शन करनी पड़ेगी, फ्रेश रिटर्न फाइल करने की करेक्शन कर फाइल कर लेंगे, उसके बाद में लायबिलिटी हो जाएगी ऐसे। तो जो भी रिटर्न फाइलिंग के लिए डिटेल्स हम जो आप कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, वो थोड़ा सेंसरली अच्छी तरह से चेक करके ध्यान से फाइल करना है। और कुछ अभी जैसे चालान करेक्शन के लिए मैडम ने बोला, तो अगर पैन या टैन रॉन्ग पे हो गया, अभी पहले क्या रहता था बैंक से सिस्टम से या और कोई ऑफलाइन प्रोसीजर से चालान पेमेंट होती थी, तो वहाँ पे चांसेस के ज्यादा थे मिस्टेक्स के। लेकिन अभी थोड़ा टैन लॉगिन जब से आ गया है, तो आप अपना टैन लॉगिन देखोगे, नाम देखते हो, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है। फिर भी अगर आपके ज्यादा इंस्टीट्यूट है या ज्यादा कॉलेजेस है जिसका टैन रॉन्ग चला गया, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में टैक्स भरना था बी ने भर दिया या बी का भरना था सी ने भर दिया, तो वो करेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ये असेसिंग ऑफिसर जो टीडीएस ऑफिसर है उसके थ्रू चालान करेक्शन कराना पड़ेगा। और
और जो जिसके अकाउंट में चला गया, जो टैन के जो रॉन्ग टैन में से पे हो गया, उससे एनओसी लेना पड़ेगा 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे इंडेमनिटी बॉन्ड में, और उनसे लेना पड़ेगा ये हमारा नहीं है चला वैसा, तो उसका वो एओ को अकाउंट में लेता है और एनओसी लेना पड़ता है इन केस ऑफ रॉन्ग टैन या रॉन्ग टैन चालान पेमेंट के लिए। अभी टीडीएस चालान जैसे करेक्शन करनी है वैसे टीडीएस रिटर्न भी करेक्शन कर सकते हैं, और कुछ चालान में अगर समझो फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट की मिस्टेक हो गई, कुछ हो गई, तो अगर ज्यादा बढ़ दिया तो आप आगे चल के टू असेसमेंट ईयर में यूज कर सकते हैं कंज्यूम और अनकंज्यूम चालान के यूज में। कंज्यूम अनकंज्यूम चालान के मीन्स आप जो अगर चालान कंज्यूम नहीं है तो आपको टू असेसमेंट ईयर में या कोई भी असेसमेंट ईयर में किसके भी अगेंस्ट वो यूज कर सकते हैं वो चालान। और जैसे आप टीडीएस रिटर्न करेक्शन के लिए फाइल करते हैं तो वहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं, रिक्वेस्टेड, इनिशिएटेड, अवेलेबल, फेल्ड एंड इन प्रोग्रेस एंड सबमिटेड टू एडमिन यूजर अंडर आईटीडी एंड प्रोसेस एंड रिजेक्टेड, तो वो हिसाब से सब डिटेल आ जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी है? Any queries? बच्चे पानी है और पानी लिया चाहिए अगर। अभी 20 ये एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जो 26 सर ने बोला प्रॉपर्टी अगर आप में से कोई ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, उसकी अगर 50 लाख के ऊपर एग्रीमेंट वैल्यू है और यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, तो उसकी 1% टीडीएस आपको काट के फुल करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई रोल नहीं है, ये इंडिविजुअल बात है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, उसकी वैल्यू एग्रीमेंट लाख के 50 लाख के ऊपर है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, तो आपको 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करनी है और सेलर को वो अमाउंट लेस करके देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी 60 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 60,000 टीडीएस काट के आपको 59,40,000 सेलर को पे करना है, और विद इन 30 डेज में आपको गवर्नमेंट का अकाउंट में पे करना है थ्रू फॉर्म 26QB, और उसका 16B फॉर्म जनरेट करके उसको फिल करके दे देना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का कोई रिलेशन नहीं है, ये एज ए इंडिविजुअल बता रहा हूँ। ये 2013 से एप्लीकेबल है, ये 2013 से। हाँ, इसमें टैन की जरूरत नहीं है, आप टैन के लॉगिन के थ्रू वो चालान पे कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। इसमें फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को पता नहीं था, सेलर ने नहीं बताया। ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, आप अपने इसमें भी शेयर कर सकते हैं अपने जो कलीग्स हैं इसको भी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। मोस्टली बिल्डर लोग बताते हैं लेकिन कोई नहीं भी बताते हैं, आप कोई बिल्डर इसमें नहीं है रिलेटेड, नॉर्मल बायर सेलर है, तो 50 लाख के ऊपर एग्रीमेंट है तो आपको वो ये प्रोसीजर करना है, वो एग्रीमेंट या 30 डेज के अंदर आपको वो पे करना है 1%। और कुछ क्वेरी रिलेटेड टू चालान एंड कंप्लायंसेस? अभी ये मैं जो भी सब जो एम्प्लॉयर है जिनके नाम पे टैन है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जैसे फॉर्म 24Q और 26Q क्वार्टर वाइज फाइल हो जाता है, उसके बाद 27 ये आता है और रिसिप्ट आती है ऑनलाइन फाइल करके, वो आप संभाल के फाइल करके रखिए फाइनेंशियल वाइज। उसके बाद उसके ट्रेसेस में लॉगिन में जाके उसका डिफॉल्ट समरी आता है, वो जनरेट करके रखिए। उसमें आपको दिखेगा भाई आपका कोई डिफॉल्ट है या कुछ डिमांड है या कुछ है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपका डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट है या कुछ भी इंटरेस्ट पेनल्टी या कोई भी टाइप की डिमांड या लोअर डिडक्शन या कम डिडक्शन कुछ भी वो नहीं है तो आप सेफ है। तो वो आप पूरा हर फाइनेंशियल वाइज क्वार्टर वाइज आपको जैसे 27 ये रहता है 24Q और 26Q का रिसिप्ट के साथ वो डिफॉल्ट समरी भी प्रिंट आउट निकाल के रखिए, तो आपको एक थोड़ा ये आएगा सेटिस्फेक्शन भाई ठीक है हमारा ये क्वार्टर में कुछ भी डिमांड नहीं है, और वो आप ऑडिटर को एट द ईयर ऑफ एंड दिखा सकते हो भाई हमारे चारों क्वार्टर ओके है और फाइलिंग ओके है, डिफॉल्ट नहीं है, कुछ डिफॉल्ट नहीं है और हमारे सब प्रिपरेशन रेडी है। तो वो आप एक प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से आप अपना डिफॉल्ट समरी निकाल के, वो डिफॉल्ट समरी जैसे ही प्रेजेंट प्रोसेस होता है ना विद इन 10-15 डेज आ जाती है ट्रेसेस के पोर्टल पे,
अगर वो डिफॉल्ट समरी कुछ आता है उसमें तो आपको उसको एक्शन लेना है। भाई क्या है, हमारी तरफ से कुछ लेट इंटरेस्ट है, चालान लेट हुआ है, रिटर्न लेट फाइल हुआ है, या किसका पैन नंबर रॉन्ग गया है, तो वो डिफॉल्ट क्यों आया है, तो उस पर एक्शन लेना है आपको। ऐसा है, वो चीज है। अगर वो उस पर आप ध्यान देके हर क्वार्टर वाइज फाइल करके रखोगे तो आपको आगे फ्यूचर में कभी भी तकलीफ नहीं है। ये बात मैं बताना चाहता था। एज ए डीडीओ या जो एज ए प्रिंसिपल है वो अपने स्टाफ को एक ये इंस्ट्रक्शन दे देवे, भाई हमारे क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें फॉर्म 26Q और 24Q के साथ रिसिप्ट के साथ डिफॉल्ट समरी भी एक लगा के रखिए, तो आपको थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन आएगा। और कुछ क्वेरी ड्रेसेस पे आता है, आपको हर क्वार्टर वाइज के बाद दिखता है। तो जैसे ड्रेसेस लॉगिन करोगे वहां पे आपको दिखेगा भाई आपका कितना डिमांड है, नहीं है, जीरो है, और आपको मेल भी आ जाती है। जैसे एवरी रिटर्न प्रोसेस होता है, मेल आ जाता है, डिफॉल्ट जनरेटेड विद और नो डिफॉल्ट जनरेटेड, ऐसे मेल आ जाता है। अगर आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो हमारा एनएसडीएल का सेंटर है प्रोटीन का, अगर रिटर्न तो वुडलैंड कॉम्प्लेक्स में P11, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर लिखिए, नवीन सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन बिकॉज ये दोनों हमारे एलुमनाई हैं, गिरीश भी और नवीन भी। अभी गिरीश तो फाइनल ईयर से अभी जस्ट एग्जाम देके हो गया, तो मैंने उसको एलुमनाई कर दिया है। वो भी सेकेंड ईयर के बाद ही लेफ्ट बिकॉज ही इज अ फुल फ्लेजेड CA। मैं ये सोच रही थी ना, द पर्पस वाज दैट कि हमको एक एक्सपोजर मिले ना, तो छोटी छोटी बात के लिए आप किसको पूछे, हम नागपाल सर को परेशान करते हैं, फिर उधर से रिप्लाई आए। सो इफ यू हैव समबडी इन हाउस, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर हम टाई अप करते हैं आप दोनों के साथ में, तो हमारे पूरे कैंपस में जब भी हमें जिसको भी ये हुआ, तो लाइक बीइंग एन alumni, they are contributing to the college, you know, we can always have an access to knowledge. That is what I was thinking. हमारे ऑफिस में भेजते हैं मैडम DDS रिटर्न फाइलिंग के लिए, हमारे ऑफिस में बहुत सारे कॉलेजेस भेजते हैं, लेकिन वो प्रिपेयर करते हैं खुद और पता नहीं है मैं हूँ ये वो, तो हमारे ऑफिस में भेजते हैं। अभी वो तो इनफॉर्मली होता है, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ अगर हम लोग इसको फॉर्मली करें, सबको मिले ना मदद। लेकिन अगर हम लोग एक पूरा कैंपस एक साथ होकर के, फिर अगर हमारे एलुमनाई हमें इस तरह की सारे कैंपस को मदद करते, तो दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी गुड, यू नो, ऑन आवर पार्ट कि हमारे एलुमनाई इतने कनेक्टेड हैं करके। तो ऑफ कोर्स सारे लोगों के लिए वेलकम ही है कि दे विल बी, सो विल वर्क आउट समथिंग अबाउट दैट कि सारे कॉलेजेस आपके पास में आ सके, यू नो, एक्सेस ले सके। और कभी भी आपको TDS से रिलेटेड कुछ ऑफिसर के पास की क्वेरी है, या बॉम्बे TDS, कल्याण TDS, तो मेरे को पूछ सकते हैं। थाना TDS मेरी लिंक्स है, वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा। या इट्स बेटर ना इफ यू हैव समबडी डिपार्टमेंट में अगर कुछ है प्रॉब्लम या कुछ क्वेरी है, डिमांड है, कुछ चालान से रिलेटेड, तो मैं सबको हेल्प आउट करूँगा। थिंक आउट कि आप हमारे मदद कर रहे हैं ना, ये एक वर्कआउट करते हैं फॉर्मल तरीके से। इनफॉर्मल तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन फॉर्मल तरीके से भी करते हैं, सो दैट वी कैन शो कि हमारे ये दो एलुमनाई भी, लाइक, यू नो, दे आर इनटू दिस एंड वी आर फ्री टू कम टू यू, यू विल हेल्प अस इन एवरी पॉसिबल वे। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द कॉलेजेस, आई बिलीव। थैंक यू। थैंक यू। It was indeed a very wonderful session, sir. On behalf of Nari Gursahani Law College and all the participants, I extend my heartfelt thanks to you. And it is just an eye-opener. We realize that there is much more to learn. And I hope that in coming times you will be cooperating with us to enlighten us about financial literacy and other things which we may just simply hear or read in newspapers. But being teachers or being a part of an academic institution, we have to be dealt with a thorough knowledge of the concepts, though not going into much details, but at least the surface value knowledge we all must have. With this, I end my few words. Thank you very much.